Hi everyone and welcome to Poems with Friends जहाँ हम एक पोएम पढ़ते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं. We are your hosts अनुराग एंड मेघा और आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं आयुष who is also really interested in poetry. तो आयुष मतलब is there any specific poet that you like या generally random things? I think generally random things. I like stories Oh, and interesting. generally poetry say I get to learn something or some story I get to know. Interesting, interesting. I also like that. मतलब I also like poems which have stories. तो ठीक है आज हम बिफोर समर रेन पढ़ेंगे बाय रिल्के. ठीक है पढ़ूं अनुराग. Yes. ओके. बिफोर समर रेन बाय रेनर मारिया रिल्के. मतलब इट्स an इंग्लिश ट्रांसलेशन. इट्स ऑफ कोर्स ओरिजिनली रिटन इन जर्मन. Suddenly from all the green around you something you don't know what has disappeared. You feel it creeping closer to the window in total silence. From the nearby wood, you hear the urgent whistling of a plover, reminding you of someone Saint Jerome. So much solitude and passion come from that one voice, whose fierce request the downpour will grant. The walls, with their ancient portraits, glide away from us, cautiously, as though they weren't supposed to hear what we were saying. And reflected on the faded tapestries now, the chill, uncertain sunlight of those long childhood hours when you were so afraid. Interesting. ठीक है. कैसी लगी फर्स्ट फीलिंग्स एनीथिंग? Mm. Yeah, but it has a very Stranger Things vibe. राइट राइट. मतलब मिस्टीरियस राइट. आई ऑल्सो फेल्ट दैट. It's very like it is building up like a scene, which is हाँ. interesting. यस. आई एग्री आई एग्री. बिल्डअप तो है. बिल्डअप इज एक्चुअली अ वेरी नाइस वर्ड because it's matlab it's talking about rain which comes after a sort of build up. So I like that word. ठीक है. I also really like this poem because of the मतलब मेरी भी first feeling थोड़ी सी mystery वाली थी. तो I really like that feeling of mystery. तो ठीक है. Let's go deep into it. एक एक करके पढ़ते हैं पैराग्राफ. Suddenly, from all the green around you, something you don't know what has disappeared. You feel it creeping closer to the window in total silence ठीक है. from the nearby wood. I guess we can end at total silence. हम्म. मतलब दिस पैराग्राफ एक्चुअली रिमाइंडेड मी ऑफ जब हम छोटे थे. मतलब बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट समर रेन एंड दिस इज यूजिंग सच अ वियर्ड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग रेन बिकॉज इट सेज सडनली फ्रॉम ऑल द ग्रीन अराउंड यू समथिंग हैज डिसअपियर्ड. तो मुझे याद है जब हम छोटे थे और बारिश होने वाली होती थी तो मेरी मॉम बोलती थी कि अचानक से वो हो गया है. मतलब साफ हो गया है वेदर या हल्का हल्का सा लग रहा है. तो इट फेल्ट लाइक सम देयर वाज अ वेट बिकॉज ह्यूमिडिटी वुड बेसिकली बिल्ड अप राइट स्पेशली इन दिल्ली व्हेन देयर इज क्रेजी मॉनसून. यू कैन फील दैट ह्यूमिडिटी ऑन यू लाइक अ फिजिकल थिंग. एंड देन सडनली वो खुल जाता है. मतलब सडनली समथिंग ओपन्स एंड देन देयर इज रेन. तो आई रिमेम्बर दैट मोमेंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड व्हेन माई मॉम यूज्ड टू से कि खुल गया है एकदम से. तो अब शायद बारिश होगी. I Mm. would say it's like when before rain happens, हम्म. uh, there is a settling of dust also.
Right, I right. mean, because before rain, there are like usually some winds, and then that displaces whatever is in the air. Hmm. And I guess maybe because of the air and its movement, we feel like something creeping closer to the window. But Oh. it's still like, in a way, it's not like a very resounding or like a violent air. So it's also Hmm. like silence in a way. Oh, interesting, interesting. Hmm. Right. It's like wind को उसने directly wind word नहीं use किया, but everything he's describing is reminding you of that wind, which is मतलब very mysterious kind of slow wind वैसा. Yeah. And I really like the imagery that like the creepiness comes from the fact कि someone creeping is actually an addition to the atmosphere, and where कि the poet is like कि something has disappeared, and Uh, मतलब it really, the fact that he uses such a specific word makes you really think hmm. कि उस summer rain में what have like what usually disappears, because summer rain is so universal, but Hmm. disappearing is never something that I would have associated before this poem. राइट एब्सोल्युटली. हाँ मतलब इट्स लाइक बहुत ही अजीब सी बात है, बट वंस यू रीड इट यू फील लाइक कि ओ हाँ, मतलब दैट इज एक्चुअली अ फीलिंग दैट यू फील, बट यू नेवर नोटिस दैट फीलिंग. हाँ मतलब I think also in terms of sound वगैरह also things become like kind of settled, like चिड़िया बिड़िया होगी वो सब बातें करना बंद कर देंगी, मतलब it इंटरेस्टिंग. there is kind of कि it definitely feels like कि अब कुछ होने वाला है. राइट, राइट. हाँ मतलब उसने वो माहौल बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया जस्ट द मोमेंट बिफोर द रेन का. और मतलब वही है ना कि वी डोंट नोटिस इट एनी मोर. मे बी वी यूज टू व्हेन वी वर किड्स, बट अब हम कहाँ ही नोटिस करते हैं बारिश होने वाली होती है तो, क्योंकि पहले तो बारिश होने वाली होती थी तो बिजली भी चली जाती थी, तो यू वर ओनली लेफ्ट टू नोटिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब तो बारिश हो जाती है, होके खत्म हो जाती है और हम फोन पे ही लगे रहते हैं. ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट रैंट, दैट्स नॉट गो देयर. हाँ मतलब लवली डिस्क्रिप्शन. आई थिंक वी ऑल एग्री कि बारिश के जस्ट पहले वाले मोमेंट में क्या होता है, ही हैज समहाउ कैप्चर्ड. एंड आई थिंक आई ऑल्सो लव द फैक्ट कि उसने कोई वही जेनरिक वर्ड्स नहीं यूज किए. लाइक ही डिड नॉट एक्चुअली यूज द वर्ड विंड बट आई यूज थॉट ऑफ विंड. ही डिड नॉट यूज द वर्ड ह्यूमिडिटी बट आई थॉट ऑफ ह्यूमिडिटी. तो उसने बहुत ही पर्सोनिफाई करके उसको एक माहौल सा बना दिया. लाइक ही हैज फोकस्ड ऑन द फीलिंग एंड द एटमॉस्फेयर, बट उसने उसको कुछ नेम्स देने की कोशिश नहीं करी, विच आई रियली लाइक. Hmm. ठीक. Also, it's interesting. So it's not usually total silence हम्म. before a rain. No, it is a form of silence, but it's interesting that he writes it total silence and not दैट इज just ट्रू some एक्चुअली. other kind of silence. हाँ that's actually very interesting. It हाँ कि हाँ he is, हाँ the total word actually is quite interesting there. कि Maybe like it has to do with something silence, but it is mostly felt by him. राइट, राइट. यस, दैट्स अ अमेजिंग पॉइंट. आई ऑल्सो अग्री टू दैट कि मतलब मे बी इट्स जस्ट इन दैट्स वन मोमेंट कि जस्ट एकदम से शुरू होने से जस्ट एक सेकंड पहले कुछ एक साइलेंस होता है, बट उसने उसको एक्सपैंड सा कर दिया थोड़ा सा. एंड मे बी दैट इज व्हाट ही फील्स, विच इज समथिंग आई वांट टू डिस्कस लेटर. बट आई एग्री. hmm. ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. Okay, I'm reading. From the nearby wood, you hear the urgent whistling of a plover, reminding you of someone Saint Jerome. So much solitude and passion come from that one voice, whose fierce request the downpour will grant. मौसम. तो मैंने थोड़ा सा गूगल करा था इससे पहले. प्लोवर को गूगल कर सकते हो. प्लोवर इज बेसिकली अ ब्लू, इज अ बर्ड. What is Saint Jerome? हाँ, सेंट जेरोम का एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट्स भी ले लेता सो दैट वी कैन रीड इट. कहीं तो है स्क्रीन पे. सेंट जेरोम इज अ सेंट. यस. तो सेंट जेरोम इनका कोई सेंट है हु वाज बेस्ट नोन फॉर ट्रांसलेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द बाइबल.
बट व्हाट आई मतलब लाइक्ड मोस्ट जो भी मैंने पढ़ा उसमें was कि सेंट जेरोम इज जनरली डिपिक्ट मतलब सेंट जेरोम की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा लाइफ ऑफ सॉलिट्यूड थी कि मतलब उसने अपने आप को सीरियन डेजर्ट में मतलब वो रिट्रीट कर लिया था एसेटिक की तरह रहता था वो और वो बाइबल ट्रांसलेट वगैरह करता था तो मतलब ही इज सीन एज एन इंटेलेक्चुअल सॉलिटरी पर्सन काइंड ऑफ थिंग और सेकेंडली ही इज जनरली डिपिक्टेड एज विद अ स्कल मतलब फोटोज में विच इज अ सिंबल ऑफ मेमेंटो मोरिया रिमेंबर यू मस्ट डाई तो उसकी जो लाइफ थी इट वाज फुल ऑफ सॉलिट्यूड एंड एसेटिसिज्म एंड ही इज considered the he is the patron saint of librarians translators archaeologists and students क्योंकि उसने वो करा था ना ट्रांसलेशन करा था बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसलेटिंग द मेजोरिटी ऑफ बाइबल इनटू लैटिन जो कि जिसको ये बोलते हैं इंटरेस्टिंग। इफ वी गो बैक टू द पोएम देन मेरे को वो समझ नहीं आया कि समवन सेंट जेरोम क्या होता है। ये मुझे भी समझ नहीं आया पूरा मुझे ऐसा लगा कि मे बी कोई पेंटिंग की बात कर रहा हो किसी ने सेंट जेरोम की पेंटिंग लगाई हो बट आई एम नॉट श्योर हम्म, हो सकता है पेंटिंग हो सकती है कि क्योंकि पेंटिंग्स इसने बाद में भी बात करी है ना नीचे तो मुझे लगा कि समवन सेंट जेरोम क्या ही हो सकता है कि जैसे मूर्ति होती है ना हमारे पास भगवानों की जैसे हम बोलेंगे कि किसी के राम तो मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडल ऑफ राम दैट पर्सन हैज वैसा लगा मुझे थोड़ा Hmm. So maybe like it means someone, Saint Jerome is someone's personality in a way, which is like full of solitude and ये भी हो सकता है हम्म, बट पर but बट it's विद द कंटेक्स्ट सेंट जेरोम इज सो इंटरेस्टिंग कि फ्लावर एक बर्ड एंड सेंट जेरोम व्हिच इज पता नहीं कितना कितनी इंटरेस्टिंग इमेजरी है भाई कि मतलब हाँ मतलब रिल्का इन जनरल काफी वो था मतलब स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों ही था वो तो ही डज यूज अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन इमेजरी बट आई थिंक मुझे ये तो बहुत ही अच्छी लगी लाइन यू हियर द अर्जेंट विस्लिंग ऑफ अ फ्लावर बिकॉज मे बी मतलब आई एम राइट नाउ लिविंग इन द मिडल ऑफ अ फार्म तो वो बहुत अच्छी एक इमेज सी आई कि मतलब चिड़िया जब बारिश होने वाली होती है तो बहुत ही तेज तेज चींची चींची करने लगती हैं वो तो वो अर्जेंट विस्लिंग ऑफ अ फ्लावर इज लाइक सो एप्ट एज एन इमेज कि अर्जेंट होती है मतलब वो जो चिड़िया की साउंड होती है so I हम्म, Googled and the flower word comes from pluvialis, हम्म which is derived from the Latin word pluvia, which means rain. ओ इंटरेस्टिंग So I think it's the name, the bird has come up from this phenomenon only that हम्म during rains, these birds ओ दिस are restless and they start whistling. वेरी इंटरेस्टिंग बोलते हैं वेरी ना कि वैसे बर्ड्स को समझ आ जाते हैं वेदर पैटर्न्स एंड ऑल तो मे बी दिस इज वन ऑफ दोज बर्ड्स वाह काफी इंटरेस्टिंग हम्म, तो फ्रॉम But the line reminding you of someone Saint Jerome is still unclear to me. कुड Hmm. इट बी अ ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। आई डोंट मतलब पता नहीं थिंक सो देख सकते हैं इसका ओरिजिनल वर्जन भी कुछ कर रहे हैं मतलब जर्मन किसको आती है मतलब मुझे थोड़ी बहुत आती है तूने but डिप्लोमा still. का रखा अनुराग जर्मन में तूने भी इट्स सेम ही डिप्लोमा किया बेटर मिताल तो हाँ ओके मैंने कर रखा वो आयुष को भी आती है सबको थोड़ी थोड़ी आती है सब ऐसे वो कर लेंगे मिला के। कॉपी करते हैं लेट्स सी मतलब if I remove the someone part I think the meaning I understand but someone Saint Jerome is very मतलब someone Saint Jerome पता नहीं हाँ से what someone it's ये है रियल। हाँ इसे स्टेम की होल स्टेयर रेगन फाइफर तो बर्ड लग रही है मुझे रेगन फाइफर क्या होती है हाँ ये बर्ड है
Edward Ostrom gave us der Regenpfeifer. Man denkt an einen Hieronymus. This seems like a painting only. Painting या कुछ पोर्ट्रेट ओ वाली वाइब आ रही है हाँ, इसमें. ये एक्चुअली एक आर्टिफैक्ट लग रहा है ट्रांसलेशन, बिकॉज हीरोनिमस इज अ डच पेंटर. So yes, I think a Hieronymus is just like हाँ. a painting, like how आप. you राइट राइट. like a painting by Hieronymus. वन डेंक्ट तो वन थिंक्स ऑफ वन पेंट अ पेंटिंग बेसिकली, ऐसा लग रहा है. नहीं नहीं, एक्चुअली नो, सॉरी, आई थिंक यू आर रॉन्ग, बिकॉज व्हेन आई जब मैं ये पूरा सेंटेंस डालती हूँ तो basically Google tells me that the Latin and Greek version of Saint Jerome is also called Hieronymus as a poetic symbol for intense and isolated devotion. तो one thanks मतलब maybe someone's is not the right word here. Someone's is the confusing word for us. But it might just be कि one thinks of Saint Jerome, उस टाइप का उसने बोला है कि one thinks of Saint Jerome, वैसी वाली बात है, क्योंकि इसमें Einan is आइनन. one. No, हाँ. Einan is आइनन one. इज वन, राइट. मतलब वंस आइनन सेंट जेरोम का वो मतलब तो नहीं, समवंस तो नहीं हुआ ना उसका मतलब. उसका तो मतलब हुआ कि कोई सेंट जेरोम टाइप का इंसान, वैसा. सम वैसा जो Hmm. सॉलिटरी और पैशनेट है. ठीक है. आगे पढ़ें क्या, इफ वी आर Hmm. सेटिस्फाइड, बट दिस वाज रियली नाइस. Okay. The walls with their ancient portraits glide away from us cautiously as though they weren't supposed to hear what we were saying. ओह, इंटरेस्टिंग. दिस इज एक्चुअली माय This point फेवरेट. gets more and more non-understanding as I continue. I do not understand what this means at all. ये तो मेरी फेवरेट पैराग्राफ थी. मतलब मुझे तो ये समझ आया कि बेसिकली यहाँ तक उसने सिर्फ थोड़ा सा आउटर मतलब वो डिस्क्राइब कर रहा है, बट यहाँ पे मुझे लगा कि उसने एक मतलब उसने ऑब्जर्वर पे आ गया वो. और जैसे उसने एंड में बोला ना कि कोई बच्चा बैठा है जो कि अफ्रेड है, तो नाउ जब बारिश होती है क्योंकि इतना अंधेरा सा हो जाता है, तो उस अंधेरे में वो इमेजिन कर रहा है कि जो वॉल्स हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं, विद मतलब द वॉल्स विद देयर पोर्ट्रेट्स आर ग्लाइडिंग अवे फ्रॉम अस. तो Oh, that खिड़की इफेक्ट कि जिसमें से लोग ऐसे दूर चले जाते थे. हाँ, मतलब क्योंकि इतना अंधेरा सा हो रहा है तो उस अंधेरे में उसने ये इमेजिन कर रहा है, वो ऐसा माहौल सा बना रहा है वो कि वॉल्स ही दूर जा रही हैं, ऐसा लग रहा है, मतलब इट सीम्स लाइक दैट. So is it the rain, because of the rain that the walls are, or is it specifically due to the whistling, or is just the entire scene? हाँ, आई थिंक इट्स जस्ट द सीन, लाइक द एनवायरनमेंट दैट द रेन क्रिएट्स ऑफ डार्कनेस एंड मिस्ट्री. तो अगर बचपन में याद हो कभी लाइट गई हो और बारिश आ रही हो, तो पूरा घर ही मिस्टीरियस सा लगने लगता है ना. तो मुझे लग रहा है कि वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि वो मतलब वॉल्स दूर जा रही हैं, और वो एंशियंट पोर्ट्रेट्स, मतलब एंशियंट पोर्ट्रेट्स को भी उसने एक वो डाल दिया ना, पर्सोनिफाई कर दिया कि विद देयर एंशियंट पोर्ट्रेट्स एज दो दे weren't supposed to hear what we are saying. तो वो जो मिस्ट्री है वो उसने इतनी डीपली इम्ब्यू कर दिया उस सीन में, बिकॉज उस मिस्ट्री में बेसिकली वो एंशियंट पोर्ट्रेट्स हैं जो अब तक सुन रही थी जो सब इंसान बातें कर रहे हैं, बट नाउ दे आर ग्लाइडिंग अवे. मतलब बहुत ही डीप मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है वो. Hmm. दिस इज एक्चुअली माई फेवरेट पैराग्राफ. इसकी वजह से ही मेरे को पोएम मतलब वो लगी कि वो काफी सही पोएम है ये तो. It's interesting. He says that they weren't supposed to hear what we are saying. राइट. I mean, why is it that the entire scene or the rain makes him think that, like, it's the ancient portraits weren't supposed to hear what we are saying, or Is the it because walls? the sound of the rain is muffling the voices? Okay, the rain is so because it's a downpour. It's not like it's not a टिप टिप बरसा पानी टाइप का. इट्स लाइक भाई झमाझम बारिश हो रही है, तो इट्स पॉसिबल ही इज ट्राइंग टू relate that like deafening sound of rain to the walls. दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन. राइट राइट राइट. हम्म.
But I think मतलब that's a It great gives. but I think generally मतलब Rilke की poems में he does not go very much by logic or wise. He goes mostly by मतलब वो ऐसी images यूज करता है जिससे एक environment create हो जाए और वो उसी पे फोकस करता है। मतलब अगर उसने मिस्ट्री से स्टार्ट किया है तो जैसे बच्चा नहीं होता कि अगर उसने मिस्टीरियस लग रही है उसे रेन तो उसको फिर भूत दिखने लगेंगे शैडोज में, तो वो उस टाइप का थोड़ा ऑपरेट करता है। Hmm. Hmm. यू वर सेइंग समथिंग आयुष? So I think, is it like, is it freeing for the portraits? Like, does the rain create some kind of freedom or the courage? It gives some courage to the walls in a very, like, very weird way हम्म। that they try to move cautiously away from whatever was happening inside. So हाँ it's a stretch, I guess, but I'm बट trying इट to इज personify walls and portraits. राइट राइट या इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग मतलब कि बिकॉज ही इज पर्सोनिफाइंग देम तो they are gliding away from us. It's like they are giving us space. It's almost like a creation of space कि रेन आ गई है। अब जैसे अनुराग ने बोला रेन की साउंड भी आ गई है, तो एक मतलब वो उन्होंने स्पेस क्रिएट कर दिया रेन के लिए मे बी, और रेन की साउंड के लिए। आई एक्चुअली रियली लव दैट साउंड एनालॉजी ऑल्सो। Also, Hmm. maybe it's like the walls, which were once before the rain, they were closing in the man or whatever was happening राइट inside. राइट They're राइट। now starting to like move away, glide away, and then whatever's inside feels more freer. And That is also true. It actually goes back to also this paragraph ना, that something has disappeared, कि मतलब वो जो world may be caught up with humidity या कुछ था, and everything seemed like it was coming together as you said, now it has suddenly freed or moved away वैसा। काफी It could also be a personification of the non-nature part of the things. The walls essentially are a man-made structure separating us from the rain, from the plover. कि oh They are kind right। of giving us that space, maybe. राइट 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 राइट। क्योंकि राइट हम घर में बंद हैं बट मतलब वो वॉल्स अगर मूव अवे हो जाए तो द रेन कैन कम इन। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, लास्ट पैरा करते हैं एक बार जल्दी से, देन वील गो टू ओवरऑल स्टफ। reflected on the faded tapestries now, the chill, uncertain sunlight of those long childhood hours when you were so afraid. आई थिंक मतलब ये तो सबसे इसने इजी वो दे दिया इमेज, बट आई लव कि मतलब ही डजेंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स एंड मतलब ही इज बेसिकली मतलब मुझे बहुत क्लोजर फील हुआ इस लास्ट इमेज से। मतलब if each paragraph is certainly one image, maybe this is like two images, but इस वाली इमेज से बहुत क्लोजर सा फील हुआ। मतलब ऐसा लगा कि हमने कोई चीज ऑब्जर्व करनी शुरू करी थी, मतलब हमने रेन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था एंड वी स्टार्टेड विद दैट ऑब्जर्वेशन कि कुछ होने वाला है कुछ होने वाला है, फिर डाउनपोर होता है, फिर वॉल्स जाती हैं, एंड वी एंड ऑन द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि नाउ इट इज रिवील्ड टू अस कि द पर्सन हु इज वॉचिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ हैपन is this child who is afraid and who is watching the uncertain sunlight, मतलब ऐसे फ्लिकरिंग सनलाइट। तो मुझे वो क्लोजर बहुत अच्छा लगा कि वी वर वॉचिंग समथिंग एंड नाउ वी सी द वॉचर हु वाज वाचिंग ऑल ऑफ दिस। Hmm. I also liked it. I think I remember from the first paragraph, my thought was कि like this rain is very romanticized, but not in a cliched way of romanticized. Rain is supposed to be either sad or it's supposed to be राइट freeing. Matlab, there are a lot of other feelings, but there is this fear is never really associated with rain. राइट। And I can totally see I like in the first paragraph, I was wondering ki, from a small child's point of view,
a, Exactly. a rain is a new thing. Like a Hmm. child is like, there is like birds, there is sun, and suddenly what has this deafening thing come up? Hmm. And I can see how I think I agree with you. Okay, it ties it together. Ki, why is this Right. very weird romanticization happening? And now I can see, oh, I can see a child's imagination is running wild. Hmm. Right. 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 I would say, so before the rain, the silence and the atmosphere that it creates. Hmm. Usually, when there's silence, people start, and the fear angle of the entire scene, it would maybe create some kind of like fear within the child. Hmm. So Right. it's, and then I guess maybe that is being reflected here. Right, Uh, right, right. This child is basically, मतलब वही, as you said, that kind of child जिसके लिए rain is maybe not a very usual thing. He is still afraid of that thundering, of that suddenly कुछ बहुत downpour होने वाला है. तो वो उसको, it is reflected in his eyes. It is reflected in everything he sees. The uncertain sunlight, the walls with their portraits, मतलब ghastly images that he's seeing. काफी सही है ये एक्चुअली. आई वांटेड टू से, आई थिंक आयुष यू सेड समथिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ. हाँ, यू सेड कि टोटल साइलेंस इज समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू ऑब्जेक्टिवली, बट मे बी इट इज वॉट ही इज फीलिंग. तो वो पॉइंट मुझे बहुत सही लगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हुएवर इज ऑब्जर्विंग दिस रेन इज वन काइंड ऑफ ऑब्जर्वर. जैसे क्योंकि ये बच्चा ऑब्जर्वर है, दैट इज वाई ही इज ऑब्जर्विंग द रेन इन सच अ फियरफुल मैनर, एज अनुराग सेड. तो वो बहुत सही चीज़ मुझे लगी दैट यू कॉट, बिकॉज जनरली मतलब जैसे रिल्का एक्चुअली रोट अ सेट ऑफ पोएम्स विच आर कॉल्ड थिंग पोएम्स, जिसमें ही ऑब्जर्व्स अ सर्टन सब्जेक्ट, जैसे रेन को ऑब्जर्व करा या कैट को ऑब्जर्व किया, एंड देन ही राइट्स इट. तो पीपल से कि भाई ऑब्जेक्टिवली उसने राइट किया है, बट एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली तो कुछ राइट कर ही नहीं सकते ना तुम. जो भी ऑब्जर्वर है उसकी फीलिंग्स तो मतलब प्रोजेक्ट होंगी, मतलब हिज परसेप्शन विल कलर द रियलिटी दैट ही इज सीइंग एंड हाउ ही इज सीइंग द रियलिटी, एंड ही इज एक्चुअली कलरिंग इट वेरी वेल. तो बहुत ही बढ़िया इमेजिनेशन से कलर किया है उसने तो. बट ही शोज हाँ, अस I I like, बोथ. hmm. हाँ, मतलब ही शोज अस बोथ द ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड एंड देन द ऑब्जर्वर, ताकि हमें वो क्लोजर मिल जाए. Mhm. So I like the way that he has immediately created a contrast. So from total silence to urgent whistling of a blower. Oh, It's interesting. like such a like striking difference. Hmm. Um, Right, right, right. Yeah. I think, do you guys have any like favorite lines or the ones? I really like the second paragraph. So from the nearby wood, you hear the urgent whistling of a plover, reminding you of someone, Saint Jerome. Hmm. So much solitude and passion come from that one voice whose fierce request the downpour will grant. Hmm. I like this because it is like, how can the urgent whistling of a plover remind him of a solitude? Right. That's an amazing point actually. Yes. Hmm. Because solitude is like not associated with any sounds in general, or But I actually love that point क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी बीच में when we are discussing about Saint Jerome कि because Saint Jerome is like मतलब is depicted as a person who lived in solitude. But then I love the combination of solitude and passion. So if someone is making themselves live alone, I feel that they are also filled with an extraordinary amount of passion. क्योंकि सेंट जेरोम also did a lot of work, translations और ये वो उसने बहुत किया था. तो because you are making yourself alone, your body is filled with so much energy that you do not spend otherwise talking to people. So maybe he is kind of associating that with the urgent whistling. कि मतलब there is solitude in that bird, but there is also passion out of which that sound finally comes. I love that you pointed it out. I was. I think I cannot believe I'm saying I love the same lines. I Hmm. think I like it from a different point of view because
the picture addition of Saint Jerome makes me remind of all the भक्ति एरा के वो जो भी होते थे, एकदम राधा गोपी टाइप ऑफ वाइब आ रही है हम्म। कि राधा कृष्णा टाइप्स की राधा वुड बिकम द पर्सन ना, कि एकदम सॉलिट्यूड और राइट पैशन के साथ राइट। कृष्णा मुझे ये दे दो व्हाटएवर, मतलब हाँ कि राइट मर राइट। रही होती है वो टाइप्स। तो मतलब मेरे को उस फ्लावर में आई कुड लाइक बेस्ड ऑन द इमेजरी आई connected it with that कि that imagery, and I really liked it कि it's such a different imagery and I can see it so मतलब here. Right, right. And yeah, that's actually a beautiful image because what you talked about, it also works well with this fierce request thing. Ki when there is that bhakti passion in you, then you're requesting fiercely to be one with God. And the downpour is actually downpour feels like कि एकदम भगवान की दया हो गई ना, वैसा वाला फीलिंग आता है। Hmm. It's so interesting. Oh God, I cannot believe. Ayush's point of the walls हम्म। make me realize कि the second, third, and fourth paragraph हम्म। have different people हम्म। attaching different emotions to the same rain. कि the plover is like भगवान मुझे दे दो, ओ। wall is like God के थोड़ा बहुत चले जाते हैं, and child is like भाई डरा हुआ है, and the rain is the same. हाँ, yeah, that's an amazing point actually. Yes, yes. राइट। तो इवन दो मतलब हम बोल रहे थे कि चाइल्ड ऑब्जर्व कर रहा है, बट एक्चुअली मतलब चाइल्ड इज नॉट अ वेरी सेल्फिश ऑब्जर्वर। कि ऐसा नहीं है कि चाइल्ड के सारे इमोशंस ही ओवर पावर कर रहे हैं। और जब हम फ्लावर को देखते हैं तो हम फ्लावर के इमोशंस में आ जाते हैं, फिर हम पोर्ट्रेट्स के इमोशंस में आ जाते हैं। दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट कि बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं फिर रेन को। इट्स नॉट जस्ट द चाइल्ड लुकिंग एट द रेन। ओह, Hmm. इंटरेस्टिंग। एंड देन actually the you word is used in the first paragraph, मतलब you is the watcher in the first paragraph, but बाद में you नहीं use होता। फ्लावर देख रहा है उसके बाद, और द वॉल्स मतलब वॉल्स फिर Last movement paragraph में करते हैं। होता है ना कि last paragraph में that child is you. I think the राइट first and the beginning and starting is the same observer. राइट 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 राइट। Hmm. बट इस वाली लाइन में एज यू सेड कि इसमें कोई यू नहीं है, इसमें वॉल्स ने खुद ही एजेंसी से वो ग्लाइड हो गई हैं। कि वो खुद ही एक कॉन्शियस एजेंट बन गई हैं वॉल्स ही थर्ड पैरा में। वेरी इंटरेस्टिंग यार। I really like this simple. It's such a simple poem. It's not mysterious at all. हम्म। In terms of like, it's not cryptic at all, हाँ राइट but राइट। it is the vibe. I हाँ really मतलब like this. इट्स सच अ वाइब। हाँ, आई ऑल्सो इट्स Yeah. नॉट अननेसेसरली क्रिप्टिक कि तुम्हें बैठ के कुछ उसको सॉल्व करना है, बट इट रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ चाइल्डहुड एक्चुअली, बिकॉज दिल्ली रेन वाज आल्सो वेरी स्कैरी समटाइम्स। तो मतलब आई जस्ट वेंट बैक टू दोज चाइल्डहुड मेमोरीज एंड इट्स अमेजिंग। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रेन के बारे में किसी पोएम को इतना एंजॉय करूंगी। आई थॉट कि आई कुड ओनली एंजॉय लाइक ह्यूमन इमोशन पोएम्स वैसा। Hmm. Yeah. It's also interesting how they have mentioned uncertain sunlight of those long childhood hours. Ah, right, right, right. So long, I Hmm. mean, they probably maybe were not long, Hmm. but the entire scene made it feel like it was long. Right, right. And it felt long. Sometimes in afternoons in childhood, the afternoons felt really, really long sometimes when you were bored, especially. Yeah. Oh no, but Hmm. I think I am wrong. What you're saying is कि of those long childhood hours is क्योंकि rain हो रही है and rain से तुम्हें डर लग रहा है. That's why it seems long to you. The fear Maybe like like for elongates. Hmm. and like in childhood, like maybe children like want to go out or like do something Right, that's right, right, not restrictive. right. And then for the child, it feels like it's like so long. Like when will the sunlight come so I can come like go out and play again or something. Right. Very interesting, yeah. हाँ कि for children patience is not a thing कि मतलब टाइम अलग ही लेवल पे चल रहा होता है for children versus us who have so many things to do, and मतलब as you said कि
we'll never even notice कि वो moment आके चला गया, but बच्चा बैठ के देख रहा है भाई कि हाँ something Mm. disappeared, ये हुआ वो हुआ, and the child is the मतलब child has the free time to observe all these things. Observe it, yes. That is so interesting. राइट। ठीक है, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, बट सो वील हैव टू एंड इट। दिस वाज एन अमेजिंग डिस्कशन यार। आयुष, प्लीज 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 कम टू मोर डिस्कशंस, बिकॉज इट वाज सो मच फन डिस्कसिंग विद यू।